Hello students, welcome to my channel. This is Silpa and we are doing the series of idioms and phrases. This is the lecture number 4 of the series and this video is for all the students who are preparing for any competitive examinations, and in previous 4 lectures we have completed many idioms which is frequently asked in the SSC exams. So without doing any further delay, let's start our lecture. And in this video, we will start with question number 126. So let's get started. Question number 126 is saying a close-fisted person. What is the meaning of a close-fisted person? Our options are option number A is generous person, paropkari. Option number B is honest person. No. Option number D is brave, bahadur person. No. Miser, ऐसा इंसान जो कंजूस हो, जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है. अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, जो हमेशा कंजूसी करता है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन कहलाता है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127. अ वेट ब्लैंकेट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वेट ब्लैंकेट? चीयरफुल पर्सन. नो. हेल्पफुल पर्सन. नो. ब्रेव पर्सन. नो. स्पॉइल्स अदर्स प्लान. स्पॉइल्स अदर्स फन, जो दूसरों के फन और दूसरों के प्लान्स को बिगाड़ दे, उसे हम कहेंगे अ वेट ब्लैंकेट. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 128. ऑल ईयर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल ईयर्स? ऑल ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट लिसनिंग. नो, दिस इज इनकरेक्ट. स्लीपिंग, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंग्री, this is incorrect. What is the correct option? Option number C, listening attentively. किसी की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना को हम बोलते हैं all ears. ओके. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129. At daggers drawn. What is the meaning of this idiom? Friendly? No. Calm? No. Happy? No. Hostile. The meaning of this idiom is hostile. Hostile is used in negative sense. Okay. Happy is about positive. Calm is also positive. Okay. And friendly is also positive. You can also do this question by elimination. And our next question, question number 130 is at sea. So what is the meaning of at sea? Option number A is confused. Option number B is relaxed. Option number C is happy. And option number D is angry. तो जब कोई इंसान समुद्र के बीचों बीच फंस जाए तो वो इंसान क्या हो जाएगा? कंफ्यूज्ड हो जाएगा. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एट सी यानी कि कंफ्यूज्ड होना. बैकआउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकआउट? मीन्स पीछे हट जाना, अपना कदम पीछे ले लेना को हम कह सकते हैं बैकआउट. क्वेश्चन नंबर ए, सपोर्ट. नो. एग्री. नो. हेल्प. नो. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, विदड्रॉ. किसी भी काम से, किसी भी प्लान से बैकआउट कर जाना को हम बोलेंगे विदड्रॉ. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132. बी इन द गुड बुक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? बी इन द गुड बुक्स. बी डिसलाइक्ड. ऑप्शन नंबर 1 इज बी डिसलाइक्ड. ऑप्शन नंबर बी इज बी punished. ऑप्शन नंबर सी इज बी फेवर्ड और ऑप्शन नंबर डी इज बी ignored. तो 1 is incorrect, second option is incorrect, be disliked is incorrect, be punished is incorrect, be ignored is also incorrect. Correct option is option number C, be favor. किसी का फेवर करना. be in the good books में का idiom का मीनिंग होगा.
अगला 133, क्वेश्चन नंबर 133 इज बिटवीन द डेविल एंड द डेड सी। ओके, बिटवीन यानी कि बीच में, डेविल डेविल के और डेड सी के, डेड सी और डेविल के बीच में होना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? सेफ सिचुएशन में होना, नो। हैप्पी मोमेंट, नो। इजी वर्क, नो। डिफिकल्ट चॉइस इज बिटवीन द डेविल एंड द डेड सी। ओके, next question is question number 134, big shot, big shoot. What is the meaning of big shoot? Ordinary person, no. Weak person, no. Lazy person, no. The meaning of this idiom is important person. Big shoot ka means important person. Next question, question number 135, birds of a feather. What is the meaning of this idiom? Birds of a feather means different people, enemies, similar people, or strangers. Different people is wrong, enemies is wrong, strangers are also wrong, because the option number C is the right answer. Birds of a feather means similar person, जिसकी feathers मिल रही हो, बर्ड्स ऑफ द फीदर एक जैसी हो, उनको हम बोलेंगे सिमिलर पीपल। ओके, लाइक आपने ये भी इडियम सुना होगा, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। दिस इज द सेम ऑफ दैट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 136, ब्लैक शिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक शिप? किसे हम ब्लैक शिप किसे कहते हैं? First option is good person, no. This is actually very easy idiom, as also very common. And option number B is rich person, no. Option number D is leader, no. Option number C disreputable member, disreputable member जिसको हम बोलते हैं मनहूस आदमी। ओके, हिंदी में जिसको हम बोलेंगे मनहूस आदमी, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लैक शिप। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, ब्रिंग टू नीज, मतलब नीज पे आ जाना, घुटने पे आ जाना। तो बहुत स्ट्रांग हो गया वो आदमी? नहीं। हेल्पफुल हो गया? नहीं। इनकरेज हो गया? नहीं। डिफीट कंप्लीटली, बुरी तरीके से हार जाना, पूरी तरीके से हार जाना। ओके, उसे हम बोलेंगे ब्रिंग टू नीज। Our next question is question number 138, burn one's finger, खुद का हाथ जला लेना, यानी क्या करना? get injured by experience, enjoy, win or relax. What is the meaning of this idiom? This is your homework question, because I have explained what is the meaning. You have to do comment for this question. Our next question is question number 139, by and large. What is the meaning of by and large? Mostly, no. Rarely, no. Secretly, this is also wrong. What is the correct option? Option number B, suddenly, किसी चीज का अचानक हो जाना को by and large कहा जाता है। Next question is 140, call a spade a spade, मतलब कि call a spade a spade. What is the meaning of this idiom? Option number A is speak truth, B is hide truth, C is lie, or D is confuse. तो ऑप्शन नंबर A is the correct option, because speak truth, सच बोलना, हर चीज बता देना। call a spade a spade. Okay, call a spade a spade means हर चीज को एक्सप्लेन कर देना। स्पीक ट्रूथ, सच बोल देना। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है
Question number 141. Calm, rain or shine? Calm, rain or shine? What is the answer of this idiom? Sometimes, rarely, no matter what, or slowly. Our first question is, our first option is sometimes. This is wrong. B is rarely. This is wrong. D is slowly. Wrong. What is the correct option? Option number C, no matter what. Okay. The correct option of this question is option number C, no matter what. Okay, I am hoping guys you are clear with all the idioms. You are getting my points. एंड हमारा अगला क्वेश्चन है क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब कि मगरमच्छ के आंसू बहाना। तो मगरमच्छ के आंसू बहाना ये इडियम तो सभी को पता होता है। रियल सॉरो सच का दुख में होना, सच में दुख में होना नहीं। हैप्पीनेस नहीं। तो एंगर दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, फेक सॉरो झूठा दुख, किसी का दिखावा करना को हम बोलेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 143। कट द गॉर्डियन नॉट। नॉट यानी कि बंधन और गॉर्डियन, कट द गॉर्डियन नॉट मतलब कि बड़ी बंधन को खत्म कर देना। द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, द मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज कॉम्प्लिकेट करना किसी चीज को नहीं, डिले करना नहीं, अवॉइड करना नहीं, सॉल्व क्विकली किसी भी मैटर को सॉल्व करना को हम बोलेंगे कट द गॉर्डियन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 इज डेड लेटर। डेड लेटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेड लेटर? इम्पॉर्टेंट लॉ नो, न्यू लॉ नो, ऑब्सोलीट लॉ यस। डेड है मतलब वो ऑलरेडी डेड है यानी ऑब्सोलीट है, उसका अब कुछ काम नहीं है। डेड लेटर यानी कि ऑब्सोलीट रूल, नॉट एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 इज डाउन टू अर्थ। ओके, दिस इज एक्चुअली वेरी इजी इडियम्स। डाउन टू अर्थ मीन्स प्रैक्टिकल, किसी भी प्रैक्टिकल इंसान को हम डाउन टू अर्थ कहते हैं, ना कि लेजी को बोलते हैं, ना कि प्राउड को। एंड ऑल्सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 146। ईगल आई मीन्स चील की आंख। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगल आई? चील की आंख। तो चील की आंख जो होती है वो वीक साइट होती है नहीं, ब्लाइंड होती है नहीं, लेजी होती है नहीं, शार्प ऑब्जर्वेशन मतलब कि किसी भी चीज को जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है, दूरदृष्टि होती है, शार्प ऑब्जर्वेशन होती है। ईट हम्बल पाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईट हम्बल पाई? ईट हम्बल पाई means apologize, okay, not fight, not laugh, not celebrate. Eat humble pie means apologize यानी माफी मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज end in smoke means धुएं में खत्म हो जाना, means what is the meaning? ऑप्शन नंबर ए इज सक्सीड कर जाना, नो। सक्सीड करोगे तो आप फ्लाइंग कलर्स में गिनती होगी, और अगर एंड इन स्मोक हो गया मतलब धुएं में खत्म हो जाना यानी कि फेल कंप्लीटली, बुरी तरीके से फेल हो जाना। एंड अगर आप सक्सीड करोगे तो कम विद फ्लाइंग कलर्स। बी इज इनकरेक्ट एंड डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब कि ऐसा फ्रेंड जो फेयर वेदर में होता है, यानी कि फ्रेंड इन गुड टाइम्स ओनली, जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है
वो फ्रेंड सिर्फ तभी होता है बुरे समय में साथ नहीं देने वाले को हम बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड. ट्रू फ्रेंड, नो. एनिमी, नो. स्ट्रेंजर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स friend in good times only. Question number 150. Fall through. Meaning of fall through is succeed. Fall, कहीं पे भी आपको अगर fall से रिलेटेड idioms दिखे तो उसमें आप नेगेटिव सेंस लगा करके उस idioms को एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो. जैसे कि यहाँ देखो, fall through, सक्सीड करना, नो, क्योंकि इसका जो सेंस है वो नेगेटिव है फॉल थ्रू का. ऑप्शन नंबर बी इज इम्प्रूव करना, नो. ऑप्शन नंबर डी इज स्टार्ट करना, नो. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, फेल करना. एंड क्वेश्चन नंबर 151 इज फेदर वंस नेस्ट. फेदर वंस नेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस idiom? Okay, feather one's nest means option number 1 is, option number A is save money dishonestly. मतलब बेईमानी से कमाया हुआ पैसा, बचाया हुआ पैसा को हम बोलते हैं feather one's nest. ओके, बेईमानी से कमाए हुए पैसे को हम बोलेंगे save money dishonestly. Feather one's nest, not donate, not help others, and not travel. Next question of this lecture is flog or dead horse. Okay, flog or dead horse का मतलब होगा यूजफुल एफर्ट, नो. सक्सेस, नो. एंजॉय, नो. वेस्ट एफर्ट, एफर्ट को वेस्ट करना. ओके, हम बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153. फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मीन्स ऑइंटमेंट में फ्लाई का आ जाना, यानी कि स्मॉल प्रॉब्लम हो जाना को हम बोलेंगे फ्लाई इन द ऑइंटमेंट. ऑप्शन नंबर बी इज हैप्पीनेस, दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर डी इज हेल्प, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड ऑप्शन नंबर सी इज बिग सक्सेस, दिस इज रॉन्ग. एंड फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब किसी भी तरह मैनेज करके अपने लाइवलीहुड को मैनेज करना बोलते हैं उसको हम फ्रॉम हैंड टू माउथ. ऑप्शन नंबर ए इज लीव पुअरली, येस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी इज सेव मनी, दिस इज इनकरेक्ट. डी इज रिलैक्स, दिस इज इनकरेक्ट. एंड सी इज लीव रिचली, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155 इज गेट कोल्ड फिट. ओके, गेट कोल्ड फिट यानी कि आपके फीट जो हैं वो कोल्ड हो गए, ठंडे पड़ गए. तो इडियम्स में ठंडा का भी मीनिंग नेगेटिव सेंस में जाता है. अगर कोल्ड से रिलेटेड किसी भी इडियम्स को आपको अटेम्प्ट करना है तो नेगेटिव ऑप्शंस को चुनो. ऑप्शन नंबर ए इज बिकम ब्रेव, नो. ऑप्शन नंबर बी इज वीन, नो. ऑप्शन नंबर डी इज लव, नो. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी वाज लूज करेज. करेज को, साहस खो जाना को बोलेंगे गेट कोल्ड फीट. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156. गेट द बेनिफिट ऑफ डाउट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट. ट्रस्ट समवन, या इग्नोर नहीं होगा, हेट नहीं होगा, पनिश भी नहीं होगा. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 157 इज गो डाउन इन फ्लेम्स. ओके, गो डाउन इन फ्लेम्स यानी कि fall badly, this is the correct option. Okay, this is the correct option. This is our next slide in which question number 158 is saying hand and glove. Okay, hand का glove में होना मतलब ढका हुआ ना, वर्क क्लोजली. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इग्नोर करना, फाइट करना, स्लिप करना, नो. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, this is wrong, and this is wrong. Hand in glove means work closely.
हैंग बाय अ थ्रेड, मतलब एक सिर्फ थ्रेड की मदद से किसी चीज़ का हैंग होना, तो वो चीज़ सेफ होगी? नहीं। वो चीज़ हैप्पी होगी? नहीं। वो चीज़ रिलैक्स्ड होगी? नहीं। वो चीज़ डेंजर में होगी। एक सिंगल धागा से किसी चीज़ का लटका हुआ होना मतलब कि डेंजर सिचुएशन में होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 इज हैव अ बोन टू पिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? ऑप्शन नंबर ए इज प्रेज, ऑप्शन नंबर बी इज हेल्प, सी इज कॉम्प्लीमेंट complaint and D is slip. तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, कंप्लेंट करना इज द मीनिंग ऑफ हैव अ बोन टू पिक. ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, हिट बिलो द बेल्ट. हिट बिलो द बेल्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिट बिलो द बेल्ट? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब फेयर प्ले? नो. हेल्प करना? नो. सपोर्ट करना? नो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? अनफेयर अटैक करना. हिट बिलो द बेल्ट, अनफेयर तरीके से किसी चीज को करने को हम बोलेंगे हिट बिलो द बेल्ट. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 162, होल्ड वंस टंग, मतलब अपनी बात को ना कहना, चुप रहना. होल्ड वंस टंग मतलब ना बोलना. स्पीक करना, दिस इज टोटली ऑपोजिट. साउट, चिल्लाना, दिस इज ऑपोजिट. लाफ, हंसना, दिस इज ऑपोजिट. कीप क्वाइट, कुछ ना बोलना. होल्ड वंस टंग. क्वेश्चन नंबर 163, इन अ नट शेल. इन अ नट शेल का मतलब क्या? ब्रीफली. नट सेल के अंदर होना यानी कि ब्रीफली. नॉट स्लोली, नॉट क्लियरली एंड नॉट लेंथीली. क्वेश्चन नंबर 164 is in black and blue. तो what is the meaning of in black and blue? Means black and blue का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज injured, B is proud, C is happy and D is calm. In black and blue means injured person, not proud, not happy, not calm. ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है इंजर्ड पर्सन. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, इन डीप वाटर मतलब गहरे समुद्र में होना. इन डीप वाटर मीन्स सेफ होना. नो, दिस इज रॉन्ग. हैप्पी होना, दिस इज रॉन्ग. रिलैक्स्ड होना, नो. इन ट्रबल, प्रॉब्लम में होना को हम बोलेंगे इन डीप वाटर. इन डीप वाटर. क्वेश्चन नंबर 166 इज इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. मीन्स आई के ट्विंकल करने में ही किसी काम का हो जाना. आपकी पलक का एक बार झपकने से पहले ही किसी काम का हो जाना. तो वो काम स्लो होगी? नहीं. वो काम लेट होगी? नहीं. रेयरली होगी? नहीं. वेरी क्विकली किसी चीज का हो जाना को हम कहेंगे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर. ओके, कीप द वुल्फ, वुल्फ को रखना, कहाँ रखना? फ्रॉम द डोर, डोर पे रखना. ओके, अंदर नहीं आने देना. मीन्स क्या? अवॉइड हंगर? यस. नॉट स्लीप, नॉट फाइट और नॉट इनवाइट डेंजर. और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 इज किक द बकेट. किक द बकेट का मतलब किसी का मर जाना होता है. ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट एंड डी इज इनकरेक्ट. अगला क्वेश्चन है our next question is question number 169 in which saying
किल टाइम, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किल टाइम? टाइम का किल कर देना। ऑप्शन नंबर ए इज वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट करना। ऑप्शन नंबर बी इज वर्क, वर्क करना। ऑप्शन नंबर सी इज save time, or option number D is study. Means what will be the correct option? You have to write down in comment. This is your question number 2, homework question number 2. Okay. In which ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये 50-50 हैं चांसेस, या ये होगा या ये होगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट। क्वेश्चन नंबर 170, लीव नो रूम फॉर डाउट्स, मतलब कि डाउट के लिए किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं छोड़ना, कोई रूम नहीं छोड़ना, मतलब किसी चीज के साथ क्लियर होना। आप डाउट का किसी स्पेस ही नहीं छोड़ रहे हो डाउट के लिए, यानी कि आप क्या हो, किसी चीज से क्लियर हो, छिपाना नहीं, डिले करना नहीं और कंफ्यूज करना नहीं। Our next question is look down upon. What is the meaning of look down upon? Look down upon means respect, no. Help, no. Love, no. Despise. This is the correct option. Our next question is 172. Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines. मतलब जब तक सन शाइन कर रहा है आप अपॉर्चुनिटी को यूज कर लो। यूज अपॉर्चुनिटी, अपना बेस्ट करके दिखाओ। ऑप्शन नंबर बी स्लिप, नो। ऑप्शन नंबर डी क्राई, नो। ऑप्शन नंबर सी वेस्ट टाइम, नो। 173 मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स स्ट्रॉन्ग मैन, ब्रेव मैन, rich man, weak man. Man of straw means not a strong man, not a brave man, not a rich man, a weak man, a weak person को हम बोलते हैं man of straw. Okay. Okay. Our next question, question number 174 is meet one's Waterloo. What is the meaning of this idiom? Meet one's Waterloo. First option is achieve success, success achieve करना. Second is win. Third is face defeat, and fourth one is celebrate. Meet one's Waterloo means achieve success, no. Win जीत जाना, no. Celebrate मनाना, no. Face defeat means डिफीट यानी कि फेलुअर का सामना करना, फेलुअर को फेस करना is the meaning of meet one's Waterloo. Okay. Our next question, question number 175 is narrow escape यानी बाल बाल बचना. Okay, बाल बाल बचना. And our options are option number A save easily, no. Danger, no. Fight, no. Barely escape means बाल बाल बच जाना, means narrow escape और barely escape. अगला क्वेश्चन है 176 no love lost. What is the meaning of this idiom? No love lost. Love each other, no. Help, no. Dislike each other, not support. Next one is 177 on the brink of, मतलब किनारे पर होना. On the brink of means किनारे पर होना. Far from, no. Inside, no. Safe, no. On the edge means किनारे पे होना. Edge means किनारा. 178 on the verge of. Okay. And our options are near to, safe, far away, or happy. And the option number B is incorrect. Safe is incorrect. Far away is incorrect. And happy is incorrect because our option number 1 is correct option, near to. On the verge of means
near to. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179. Once and for all. What is the meaning of this idiom? Once and for all. So the meaning of this idiom is finally, not slowly, not rarely, and not temporarily. Okay. Next one is 180. Out of hand. Means hand के बाहर. Control? No. Calm? No. Easy? No. Out of control. जो आपके कंट्रोल में नहीं है. क्वेश्चन नंबर 181. Pay through the nose. मतलब कोई चीज इतनी महंगी है कि आपको अपना नाक भी बेचना पड़ जाए. आप इससे रिलेट कर सकते हो और हमारे ऑप्शंस हैं पे हैविली मतलब बहुत ज्यादा पे करना, बी फ्री, सी पे लेस और डी इग्नोर करना. तो इग्नोर करना तो बिल्कुल नहीं होगा. ऑप्शन सी पे लेस विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट. फ्री नो विच इज वेरी हैवी विच इज वेरी एक्सपेंसिव. नेक्स्ट वन इज प्ले विद फायर. फायर के साथ खेलना. दिस इज सेफ एक्ट. मीन्स सब कोई कर सकता है. नो दिस इज नॉट अ सेफ एक्ट. इजी टास्क. नो प्ले विद फायर इज नॉट easy. It's a risky act, not a fun. Next question, question number 183. Pull up one sock. Okay. This means अपने आप को पुल करना, पुश करना, इम्प्रूव करने के लिए. सोने के लिए नहीं, रिलैक्स करने के लिए नहीं, क्राई करने के लिए नहीं. अगला है पुट ऑफ. Put off means postponed, not finish, not start, not celebrate, and this is a phrasal verb also. Put off means किसी चीज को postpone कर देना, delay कर देना. And अगला है 185 number. Read between the lines, and options are understand hidden meaning, ignore, read clearly, or skip. Read between the lines means understand hidden meaning. ऐसी मीनिंग जो हिडन हो उसका मतलब समझना को हम बोलेंगे read between the lines. क्वेश्चन नंबर 186. Rest on one's laurels. एक ही अचीवमेंट में रेस्ट करना यानी कि स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस. एक बार सक्सेस मिल गई इतने में ही खुश रहना, हर चीज स्टॉप कर देना, फेल हो जाना नहीं, वर्क हार्ड करना, क्राई करना नो. क्वेश्चन नंबर 187. राइज टू द ओकेजन. ओकेजन में राइज करना मतलब बढ़ना यानी कि फेल होना नहीं, स्लिप कर जाना नहीं. रन नो. परफॉर्म वेल अच्छे से परफॉर्म करना, परफॉर्मेंस अच्छी देना. नेक्स्ट वन इज 188. रब शोल्डर्स विद. रब शोल्डर्स विद यानी कि मिक्स विद. सेकेंड इज इग्नोर. थर्ड वन इज फाइट एंड फोर्थ इज अवॉइड. What is the correct answer of this question? Option number 1. Mix with. Next one is 189. Set the ball rolling. What is the meaning of this idiom? Set the ball rolling. मतलब सिचुएशन जैसे चल रही है उसको चलने दो. Set the ball rolling. Option is start something. B is delay. C end.
and D, stop. First option is the correct option. Start something. Okay. So we have done with 189 question, and here is question number 190. So one's true color, अपना सही रंग दिखा देना, सही रूप दिखा देना, यानी रिवील करना कैरेक्टर को कि आप कैसे हो. ऑप्शन नंबर बी इज हेल्प, ऑप्शन नंबर सी हाइड, ऑप्शन नंबर डी फ्रेज. नो. 191 sit on the fence. What is the meaning of sit on the fence? यानी take side. No, this is totally opposite. Fight. No. Sit on the fence means remain neutral. मतलब ना इस साइड का होना ना उस साइड का होना, न्यूट्रल होना, बीच में होना, डिसीजन ना ले पाना, कंफ्यूज होना, वो बोलेंगे sit on the fence. This will be the correct option. This is wrong. अगला क्वेश्चन 192 spick and span. What is the meaning of this idiom? Spick and span means dirty. No. Old. No. Broken. No. And C, very clean. An idiom is about remember. How much you revision, you can remember the idioms very easily with practice, with regular practice or revision. Otherwise, there is no way to remember idiom. 193 stick to one's gun. Stick to one's gun means अपनी ओपिनियन से स्टिक रहना, यानी चेंज करना ओपिनियन. नो. रन करना. नो. फ्लिप करना. नो. स्टे फिर्म. फिर्म यानी कि दृढ़ रहना. स्टे फिर्म यानी दृढ़ रहना अपने निश्चय पे. Question number 194 take after. What is the meaning of take after? Resemble. Take after means resemble. किसी की तरह दिखना को हम बोलते हैं take after. Next one is fight. लड़ना. No. C ignore. No. D1 is run. No. Our next question, question number 195 is the writing on the wall. The writing on the wall means wall पे लिखी हुई writing means clear warning. Yes. The writing on the wall means clear warning, not joy, not a fun and not a confusion. Okay. Next one is 196 throw cold water on. किसी पे कोल्ड वाटर फेंक देना यानी उसको डिस्करेज कर देना, डिसअपॉइंट कर देना. हेल्प नहीं करना, प्रेज नहीं, इनकरेज नहीं. दिस इज इन नेगेटिव सेंस. किसी को डिस्करेज करना, डिसअपॉइंट करना. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 197 टर्न द टेबल. टेबल को टर्न कर देना यानी रिवर्स कर देना सिचुएशन को, सिचुएशन को रिवर्स कर देना. हेल्प करना नहीं. लूज. नो. स्टॉप. नो. नेक्स्ट वन इज अंडर वंस नोज. अंडर वंस नोज मतलब किसी की निगरानी में. वंस नोज यानी निगरानी में, निगरानी के अंदर, निगरानी में. हिडन. नो. सीक्रेट है वो चीज. नो. फार अवे. नो. वो किसी के निगरानी में मतलब क्लियरली विजिबल है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 199 वॉक ऑन एयर. वॉक ऑन एयर कोई भी आदमी हवा में कब उड़ता है? कोई आदमी हवा में तब उड़ता है जब वो बहुत खुश होता है. कोई सैड रहेगा तो चुपचाप बैठा रहेगा, ना कि हवा में उड़ेगा. और टायर्ड रहने पे भी नहीं और एंग्री रहने पे भी नहीं. हवा में उड़ना यानी बहुत खुश होना. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 200 and this is also the last question number of this lecture.
वर्क लाइक अ हॉर्स, एक हॉर्स की तरह वर्क करना। तो व्हाट इज द मीनिंग? हॉर्स कैसा होता है? वेरी हार्ड वर्किंग, वर्क वेरी हार्ड, दिस इज राइट। रिलैक्स नहीं करता है, स्लिप नहीं करता है, प्ले नहीं करता है। हॉर्स का मेन काम वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करता है। ऑल राइट गाइस, so this is about today's lecture we have done, and this is the answers of all the questions. आप बार बार इस वीडियो को देखो और रिवीजन करो, this will help you a lot. Questions I have picked is very good and most asked question. So I hope guys you have enjoyed this video and this lecture is very helpful to you. So if you find this video helpful, do like and share, and मिलते हैं अगले